Okay, so let's go through problem 29. ठीक, budgeting. Now, completing a master budget. So this is a master budget, which means you will have to make all the budgets and then finally the income statement and the balance sheet. The following data relate to the operations of Shiro company, a wholesale distributor of consumer goods. So it's a distributor, it's not a manufacturer. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इसमें रॉ मटेरियल नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली जो फिनिश गुड आएगा वही फिनिश गुड बेचेंगे आपको. Current assets as of March 31st, cash, account receivable, inventory, building and equipment, accounts payable, common stock, retained earnings. So this is for March 31st. Okay. The gross margin is 25% of sales. Sales का 25% gross margin है. इसका क्या मतलब हो गया? Gross profit 25% is sales का. So if the sales figure is given, you can easily find out the gross profit, and then you can find out the cost of goods sold. CGS भी आप लोग find out कर सकते हैं. आगे चलें. Actual and budgeted sales data. So this is actual and budgeted sale. March is actual. These are all budgets. ठीक है? ये सारी budgeted sales हैं. तो इसका मतलब ये है कि if you want to make a selling budget, sales budget, तो ये आपकी sales होगी. और इसी का फिर 25% would be gross profit. So 75% would be CGS. Clear है? Yes. मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग दिमाग में रखते जाओ. So March is this. And let's move on. वो जो ऊपर के जो figures थे, that was for 31st March. Balance sheet के figures थे for 31st March. So it means if you need to make a balance sheet, कहीं भी नीचे आपको अगर balance sheet बनानी पड़ रही है, तो ये figures plus जिस तरह आप लोग पहले करते थे, वो journal entries, increase, decrease, वो बीच में incorporate करके और फिर नई balance sheet बनेगी. Got the idea? Got the idea? आगे चलो. Actual budget sales हो गया. Sales are 60% for cash and 40% on credit. What is this information used for? Sales collection. For cash Collection. collection. 60% cash आपको मिल जाएगा उसी महीने में, and 40% on credit. Credit sales are collected in the month following sale. तो जितना भी 40% है वो उससे next month मिलेगा. Okay, आगे चलें. The account receivable at March 31st are a result of March credit sales. जो इससे पहले account receivable आपके पास ऊपर आ रहे हैं, ये वाले अकाउंट रिसीवेबल, ये मार्च 30 यानी मार्च के महीने में जो सेल्स हुई है, ये उसके पैसे हैं जो अब तक आपको नहीं मिले. दैट मींस यू विल रिसीव इट इन अप्रैल. ठीक है? ठीक, क्लियर है यहां तक? आगे चलें. Each month's ending inventory should equal 80% of the following month's budgeted cost of goods sold. Each month's ending inventory. Ending inventory should be equal to next month's 80% CGS. CGS को आपको तरीका बता दिया ना किस तरह कैलकुलेट करेंगे. 25% और फिर उसका 75%. उस 75% वो जो फिगर आएगा उसका 80% आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी होना चाहिए. ठीक है? तो आपके पास अज्यूम क्लोजिंग इन्वेंटरी भी आ गया. आगे चलें. One half of month's inventory purchase is paid for in the month of purchase. The other half is paid for in the following month. और जब आप परचेज करते हैं तो आधी अभी पे करते हैं और आधी नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं. ये हो गया कैश पेमेंट्स. The accounts payable at March 31st are the result of March purchases of inventory. और इससे ऊपर जो accounts payable का फिगर है, accounts payable का ये वाला, ये वो सेल्स है, ये वो परचेजेस है जो आपने मार्च में की हैं. तो इसका मतलब, और आपने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब ये पैसे आप कब देंगे? अप्रैल में. ये भी क्लियर हो गया? आगे चलें. Monthly expenses are as follows. Commissions 12% of sales. Sales को 12% लेने के सिंपल. Rent 2,500 per month. 2,500 per month straight. हर month पे 2,500. Other expenses excluding depreciation 2,500 per month. Other expenses excluding depreciation 6% of sales. बाकी जितने भी expenses हैं वो 6% of sales है excluding depreciation. Depreciation इसमें शामिल नहीं. Assume that these expenses are paid monthly. ये सारे के सारे आप लोग पेड कर रहे हैं, इसमें से कोई भी पेबल नहीं है, सारे के सारे आप पे कर रहे हैं कैश में. Depreciation is 900 per month, includes depreciation on new assets. 900 per month आपकी depreciation है, ठीक है? And it includes new assets as well. नए asset, पुराने asset सब कुछ 900 depreciation. Equipment costing 1,500 will be purchased for cash in April. ये extra equipment आप खरीद रहे हैं, तो इसके ऊपर जो depreciation है वो सब मिला के 900 आ गई. ठीक है? वो कह रहा है नए assets के साथ. Management would like to maintain a minimum cash balance of at least 4,000 at the end of each month.
मिनिमम कैश बैलेंस का कॉन्सेप्ट याद है जो हम लोगों ने उसमें किया था कैश बजट में, कि हर महीने के आखिर में आपके पास कम से कम 4000 होना चाहिए। अगर 4 से ज्यादा है वेल एंड गुड, इफ लेस देन 4 देन यू नीड टू borrow. Okay, the company has an agreement with the local bank that allows the company to borrow in increments of 1000 at the beginning of each month. Borrowing आप कर सकते हैं 1000 के इंक्रीमेंट के साथ, which means या 1000 या फिर 2000 या फिर 3000 या फिर 4000। ऐसे ना हो आपके पास 5660 रुपए कम आ रहे हैं तो आप कहें कि इसकी बोरोइंग करनी नहीं, यू विल हैव टू टेक अ लोन ऑफ 6000। ठीक है, गॉट द आइडिया? यस। ओके, आगे चलें। दैट अलाउज द कंपनी टू बोरो इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जिस तरह उसमें था कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे आप ले लेंगे लोन, ठीक है, तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा अप टू अ टोटल लोन बैलेंस ऑफ 20000। दिस इज योर लिमिट, यू कैन नॉट टेक मोर देन 20000, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। द इंटरेस्ट रेट ऑफ दीस लोन्स इज 1% पर मंथ। हमने जो एग्जांपल की थी उसमें क्या था? पर ईयर, नाउ इट इज पर मंथ। ठीक है, एंड फॉर सिंपलिसिटी वी विल अज्यूम दैट इंटरेस्ट इज नॉट कंपाउंडेड। ठीक है, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल बस जो भी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1% के साथ, दिस इज योर इंटरेस्ट फॉर द मंथ, वो एक मंथ का इंटरेस्ट आता है। The company would, as far as it is able, repay the loan plus accumulated interest at the end of the quarter. ठीक है, end of the quarter हम लोग पैसे वापस कर देंगे, लोन प्लस इंटरेस्ट। Required using the preceding data, complete the following schedule. इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक, complete the following, इसको कंप्लीट करना है। Schedule of expected cash disbursement, merchandise purchase budget, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर दी है। Complete the following cash budget using schedule 9 as required, prepare an absorption costing income statement for the quarter। आपने absorption costing वाली income statement बनानी है। याद है absorption costing कौन सी होती है और variable costing कौन सी होती है? absorption costing वाली कौन सी होती है? नॉर्मल वाली, ठीक है, जो आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, वो वही वाली बनानी है, वो दूसरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली नहीं बनानी, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्टिंग है। ओके, absorption costing income statement for the quarter ended June 30th, इनकम स्टेटमेंट यहां पे बनानी है और यहां पर बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें क्या बचता है? सर वो 1500 की इक्विपमेंट परचेज की थी ना? अच्छा, बिल्कुल परचेज की थी, ये आ गया परचेज, इधर पे था ये रहा। ओके, परचेज किया, फिर तो ये परचेजेस के साथ मतलब नहीं आ रहा है, ये परचेजेस के साथ नहीं आ रहा। ये आपने कब परचेज किया? अप्रैल में, ठीक है, तो ये आप अप्रैल में ऐड कर देंगे। आपके पास शुरू में परचेजेस आपके पास आ जाएं, इक्विपमेंट आपके पास कितना है? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट नेट 120,000, ठीक है, ये 120,000 जो है ये नेट है। नेट मींस व्हाट डज नेट मीन? कम ऑन क्लास, व्हाट डज नेट मीन? जाल जो फेंकते हैं उसको नेट बोलते हैं ना, मछलियां पकड़ते हैं उसको, ठीक है, तो ये वाला नेट है। नो सर, टोटल नेट मींस टोटल, जो बच गया ना, इसका मतलब इसमें से कुछ चीजें फिल्टर हो, हाँ निकल गई, तो इसमें से आप लोग क्या माइनस कर देते हैं? इसमें से जो बिक गया और डिप्रिसिएशन आप लोग इसमें से माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है, वो आपने माइनस करके दिस इज द फिगर, ठीक, ओके। अब ये फिगर था आपके पास 31 मार्च को। अप्रैल में जो चीजें आपने खरीदी वो इसमें ऐड करेंगे, जो चीजें आपने बेची उसमें से माइनस करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन को भी इसमें से माइनस करेंगे, ओके। आ जाए इधर, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, आप लोगों ने इस पूरे इसमें बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में कोई चीज खरीदी है, बेची? सिर्फ ये और कुछ नहीं, सो दैट मींस उस फिगर में दिस विल बी एडेड। फिर आपको एक और चीज बताइए, एडिशन, डिलीशन प्लस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को भी बीच में से हटाना है, ठीक है, ओके। डिप्रिसिएशन कहता है ये 900 per month includes depreciation on new assets, so it includes the depreciation on all assets, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अप्रैल में ये खरीदा तो अप्रैल की डिप्रिसिएशन वुड बी हाउ मच? 900। इस तरह कर लें, क्योंकि 900 खाली इक्विपमेंट की तो नहीं है ना, सब चीजों की है ना, बिल्डिंग की भी, सब चीजों की,
तो अच्छा तरीका तो ये है कि वो वाला फिगर which is your 120,000 प्लस कर दें 1500 माइनस कर दें 900, you will get the net figure once again for building and equipment. Net figure आ जाएगा, बस use that figure. But this is for April. But for the next month, which is May, once again you will minus what? 900 for depreciation. ठीक है, हो गया? Then for the next month, June, you will minus 900 again. So that means end of the quarter, it will be 120,000 plus 1500, 121,500 or 900 तीन बार 2,700. Got the calculation? Yes. ठीक है? और कुछ? क्लियर है? बाकी सारा क्लियर है? बाकी सारा कर चुके हैं? Yes. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो दिस इज क्वाइट अ गुड वन एंड आई मस्ट से मेरे एग्जाम के क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो आप एग्जाम में इंशाल्लाह अच्छा कर लेंगे, अनलेस यू आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर. ओके, पॉज ओके, नॉट स्टॉप. Okay, so let's calculate this one now. Schedule of expected cash disbursements, merchandise purchases. ठीक है? Merchandise purchases. March, April, May, June. Merchandise purchases. What does this mean? Purchase करने से inventory purchase. क्या purchase करना है? Inventory. Inventory purchase करना है. वो किस चीज का था? वो किस चीज का था? Equipment थी ना वो. ठीक है? तो equipment का most probably if it says that this is scheduled expected cash disbursement for merchandise purchases, then it will not be added over here. Then where will it be added? Because it's a sort of cash. अभी हमने क्या कहा? It's a sort of cash disbursement. Cash disbursement तो है ना? Yes. Merchandise नहीं है, but still a cash disbursement. So let's go to the next portion. Cash budget. याद है हमने उसमें भी कैश बजट के अंदर ऐसी चीजें लिखी थी, इक्विपमेंट खरीदा, कैश डिविडेंड दिया, याद है? याद है ना? अच्छा भी याद है. बिगिनिंग कैश कलेक्शन सेल से आ जाएगी. ओके, टोटल कैश अवेलेबल लेस कैश डिसबर्समेंट फॉर इन्वेंटरी, फॉर एक्सपेंसेस, वो इधर आ गया. अगर आपने उधर कर दिया तो डबलिंग हो जाएगी, फिर नहीं आएगा सही. ठीक है? क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम? पॉज.